Assalamualaikum. Welcome back to my channel. This is me, Safura Rahim. Today we are going to tackle the most important 25 provisions that have been repeatedly asked in previous exam papers, model papers, and other key resources. And in this video, we will be covering the first 12 provisions along with the problem that incorporate and include all of those 12 provisions and calculations. Don't worry, I have made it super simple to understand by breaking everything down and connecting the dots. This is just part 1 of our comprehensive coverage. In the next video, we'll tackle the remaining provisions and problems. So be sure to stay tuned. Let's get started. I did is I have included all the provisions in one question so that we are solving the problem, calculations part, and understanding the provisions simultaneously. This method you can easily grasp everything. So let's start with the question. Mr. Abdul works in Confusion Private Limited and earns a salary with various allowances and benefits. We have to calculate his income from salary or taxable salary. The first thing given in the question is basic pay. We all know what's basic pay, right? The prime salary that Abdul gets for his work. जो भी उनको सैलरी मिलती उनके काम के लिए, दैट इज़ बेसिक पे, और इसी के बेसिस पे सब चीज़ें ऐड होती. बेसिक पे क्वेश्चन में दिया हुआ है 8,000 रुपीज़ पर मंथ. अपन इसको कैलकुलेट कर लेंगे. 8,000 रुपीज़ पर मंथ मीन्स 8,000 इंटू 12 पर ईयर आ जाता, दैट इज़ 96,000. We have to convert everything into year. That's why we are multiplying it with 12. 96,000, this 96,000 we are taking in under salary head. First thing basic pay, 96,000. Done. First provision. Second thing given in the question is dearness allowance. That is 2,000 rupees per month. Part of retirement benefits. Dearness allowance is nothing but कॉस्ट ऑफ लिविंग, हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग एक्सपेंसेस, या फिर जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ते जा रहा है, महंगाई भी बढ़ते जा रही है, उसे टैकल करने के लिए एम्प्लॉयर्स एम्प्लॉय को एक सर्टेन अमाउंट देते एज अलाउंस. दैट इज़ डियरनेस अलाउंस, और ये फुल्ली टैक्सेबल है. एज इट इज़ एन अलाउंस, सो वी आर टेकिंग इट इन अलाउंसेस हेड. डियरनेस अलाउंस कितना दिया क्वेश्चन में? 2,000 रुपीज़ पर मंथ. अगेन वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू ईयरली. 2,000 into 12, दैट इज़ 24,000 पर ईयर. Fully taxable, dearness allowance, 24,000 rupees. Done. Third provision is house rent allowance. This is one of the most important allowance. And one thing, this heading is also most important. Computation of income from salary of Mr. Abdul in our question for assessment year 2025 to 2026. Assessment year for your batch, as I told in my previous video, is 2025 to 2026. Yeah, where were we? We were in house rent allowance. House rent allowance is one of the most important provision for you. House rent allowance is nothing but employer employee के रेंट का खर्चा उठा रहे. रेंट जो घर में उन्हें रहते हैं वहाँ का एक्सपेंस बेयर कर रहे रेंट का. अब वो उन्हें कितना भी दे सकते हैं. In our question, house rent allowance is 1,500 rupees per month. Ahmed, we will take Ahmed as his boss, Abdul's boss. अहमद उनको दे रहे, और अब्दुल एक रेंटेड हाउस में रहते जहाँ का खर्चा कितना है? 2,000 रुपीज़ पर मंथ. अब हाउस रेंट अलाउंस क्या है? एक पार्शली एग्जेम्प्ट अलाउंस है, विच मीन्स आधे पे टैक्स दो और बाकी आधे पे मत दो. पार्शली एग्जेम्प्ट है ये. तो हाउस रेंट अलाउंस का प्रोविज़न ये है कि 3 ऑफ द फॉलोइंग, एज यू कैन सी इन आवर क्वेश्चन, 3 ऑफ द फॉलोइंग, ये जो लीस्ट अमाउंट रहता है इसमें से, उसको अपन एक्चुअल HRA में से माइनस करके जो भी बैलेंस अमाउंट बचता उसके ऊपर ही सिर्फ टैक्स पे करते. ये अपन को अलाउड एज एग्जेम्पशन हो जाता है, ये 3 ऑफ द लीस्ट. लेट मी एक्सप्लेन. एक्चुअल HRA रिसीव अपने क्वेश्चन में क्या है? 1,500 रुपीज़ पर मंथ. ये अहमद दे रहा है अब्दुल को कि अपना रेंट पे कर लो इस पैसों से. 1,500 पर मंथ मीन्स 1,500 into 12, दैट कम्स टू 18,000 रुपीज़ पर ईयर एज HRA मिल रहा उनको. और रेंट पेड माइनस 10% ऑफ द सैलरी. रेंट पे कितना कर रहे हैं अब्दुल उनके घर का? 2,000 रुपीज़ पर मंथ. दैट कम्स टू 24,000 माइनस 10% ऑफ द सैलरी. वन मोर प्रोविजन ही, आई मीन इसी प्रोविजन में ये भी चीज़ है कि सैलरी, HRA की सैलरी में 2 और चीज़ें इंक्लूड होती. सिर्फ बेसिक पे नहीं लेते यहाँ पे. क्या लेते हैं? बेसिक पे प्लस DA इफ़ एंटर्स फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट. एक और चीज़ लेते दैट इज़ कमीशन, अगर वो टर्नओवर बेसिस पे है तो.
लेकिन यहाँ पे फ़िलहाल अपने क्वेश्चन नहीं दिया गया, इसलिए सिर्फ अपन ये दो चीज़ें ले रहे हैं, बेसिक पे प्लस डी ए। बेसिक पे कितना है अपना 96,000 और डी ए कितना है 24,000। इन दोनों का 10% निकालना। 24,000 ये आ गया माइनस 10% ऑफ 12,000। इन दोनों को माइनस करें 12,000 रुपीज़। तो रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी क्या है अपना 12,000 रुपीज़। नेक्स्ट इज 50% ऑफ सैलरी। वन मोर थिंग, 50% उन एम्प्लॉयज़ के लिए लेना जो मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं, जैसे कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। और 40% उन एम्प्लॉयज़ के लिए लेना जो ये 4 सिटीज़ में नहीं रहते। फ़िलहाल अब्दुल अपने क्वेश्चन में जो है ना मुंबई में रहते हैं, मेट्रो सिटी है, वी आर टेकिंग 50% ऑफ अ सैलरी। 50% ऑफ सैलरी, इसमें भी सैलरी में यही दो चीज़ें लेना है, यहाँ पर भी 50% ऑफ दिस टू, दैट कम्स टू 60,000 रुपीज़। अब इन तीनों का जो लीस्ट है वो अपन को अलाउड एज एग्जेम्पशन रहता है HRA में, यही प्रोविजन है। एक्चुअल HRA कितना मिला 18,000, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी कितना आया 12,000 और 50% ऑफ सैलरी कितना आया 60,000। तीनों में से लीस्ट क्या है 12,000, सो वी विल टेक 12,000 एज एग्जेम्प्टेड HRA। एक्चुअल कितना अपन को टैक्सेबल होता था अगर अपन को एग्जेम्पशन नहीं मिलती 18,000, लेकिन अपन को 12,000 रुपीज़ लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग करे बाद अलाउड एज एग्जेम्पशन मिल गए, कितने पे अपन को टैक्स देना नहीं पड़ता। 18,000 माइनस 12,000 दैट कम्स टू 6,000। दिस 6,000 पे अपन को अब टैक्स पे करना पड़ता, और यही अपन आप क्या करेंगे अलाउंसेज हेड में एज HRA 6,000 रुपीज़ taxable. Simple. I hope you got this. Next thing in our question is city compensatory allowance. City compensatory allowance. City compensatory allowance is nothing but अगर कोई भी एम्प्लॉय हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी में रहते हैं, ऐसी सिटी में रहते हैं जहाँ की महंगाई ज़्यादा है, तो उसे टैकल करने के लिए एम्प्लॉयर्स एम्प्लॉय को एक अलाउंस देते हैं, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस। यहाँ पे अपने क्वेश्चन में है 800 रुपीज़ पर मंथ एज सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, और सिटी कंपनसेटरी अलाउंस इज़ फुली टैक्सेबल। उसको ईयर में कन्वर्ट कर लिए, दैट इज़ 9,600। वी हैव टू टेक दिस डायरेक्टली अंडर द अलाउंसेस हेड एज सिटी कंपनसेटरी अलाउंस 9,600। सिंपल। नेक्स्ट थिंग इज़ कमीशन। कमीशन वो एक्स्ट्रा पैसे है जो आप ज़्यादा सेल्स करने पर या कंपनी में रेवेन्यू लाने पर मिलता है। कमीशन इज़ ऑफ 2 टाइप्स, फिक्स परसेंटेज बेसिस या फिर परसेंटेज बेसिस। जितना ज़्यादा आप सेल्स करो उतना ज़्यादा आपको परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू मिलता, कमीशन मिलता आई मीन, या फिर फिक्स परसेंटेज, डिस्पाइट आप सेल करो या मत करो, या आपको फिक्स्ड कमीशन मिलता। और अपने क्वेश्चन में कितना दिया कमीशन 5,000 रुपीज़, और अपन इसको डायरेक्टली ले लिए। नेक्स्ट थिंग इज़ बोनस। बोनस वो अमाउंट है जो आपको एडिशनली मिलता, एक्स्ट्रा, किसी फेस्टिवल्स पे या फिर कंपनी का रेवेन्यू ज़्यादा होने पे बोनसेस मिलते, राइट। और अपने क्वेश्चन में बोनस कितना दिया 1,000 रुपीज़ डायरेक्टली, वी हैव टेकन दिस। फुल्ली टैक्सेबल ये सारे, बोनस, फीस, कमीशन, एरियर्स ऑफ सैलरी, एडवांस सैलरी, दीज ऑल आर फुल्ली टैक्सेबल। नेक्स्ट थिंग इज़ फीस। फीस मतलब अगर आप आपकी जॉब से हट के कोई कंपनी को सर्विस दिए, जैसे कंसल्टेंसी सर्विसेज दिया या फिर कोई प्रोजेक्ट में हेल्प कर दी कंपनी के जो आपके डिपार्टमेंट का नहीं था, तो आपको उसके लिए फ़ीस मिलती, विच इज़ फुल्ली टैक्सेबल। अपने क्वेश्चन में कितनी दी है फीस 1,000 रुपीज़, बोनस 2,000 रुपीज़, कमीशन 5,000 रुपीज़, फुली टैक्सेबल। नेक्स्ट थिंग इज़ एरियर्स ऑफ सैलरी। एरियर्स ऑफ सैलरी इज़ नथिंग बट ड्यू सैलरी, मतलब पहले ही ड्यू हो गई थी प्रीवियस ईयर में, या फिर अब मिल रही, पिछले मंथ में ही ड्यू हो गई थी अब मिल रही, या फिर एडवांस सैलरी बाद में मिलना था लेकिन अभी मिल गई। फॉर एग्जांपल मार्च में सैलरी मिलना था लेकिन फेब्रुअरी में मिल गई। दोनों ही केसेस में फुल्ली टैक्सेबल है। और अपने क्वेश्चन में एरियर्स ऑफ सैलरी 1,500 है, सिंपली फुल्ली टैक्सेबल है तो ले लेना। और एडवांस सैलरी 1,000 रुपीज़ है, फुल्ली टैक्सेबल है, ये भी ले लेना। नेक्स्ट थिंग इन आवर क्वेश्चन इज चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस इज़ नथिंग बट एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बच्चों की पढ़ाई का खर्चा उठा रहे, पढ़ाई के एक्सपेंसेस दे रहे, ऐसा अलाउंस दे रहे उनको, जो कि एक लिमिट तक ये भी पार्शियली एग्जेम्प्ट है, और जितना भी आगे का है टैक्स जहाँ तक लिमिट तक एग्जेम्प्ट है उसके बाद सारे पे टैक्स लगता। और अपने क्वेश्चन में क्या दिया 200 रुपीज़ पर मंथ फॉर 2 चिल्ड्रन। इसका पहले अपन प्रोविज़न देख लेंगे। इसका प्रोविज़न ये है 100 रुपीज़ पर मंथ पर चाइल्ड अप टू 2 चिल्ड्रन, विच मीन्स 100 रुपीज़ तक एग्जेम्प्ट है। अगर उन्हें 100 रुपये दे रहे पर मंथ पर चाइल्ड अप टू 2 चिल्ड्रन एग्जेम्प्ट है।
विच कम्स टू ईयरली 2400 रुपीज़ पर मंथ एग्जेम्प्ट है अगर इतना एजुकेशनल अलाउंस दे रहे एक बच्चे पे, अगर 2 बच्चों पे दे रहे तो 4800 और कोइंसिडेंटली अपने क्वेश्चन में 200 रुपीज़ ही दे रहे, कौन, अहमद अब्दुल को 200 रुपीज़ पर मंथ पर चाइल्ड अप टू 2 चिल्ड्रन, दैट कम्स टू 2400 पर ईयर फॉर वन चाइल्ड एंड 4800 फॉर अनदर चाइल्ड। सो ये कोइंसिडेंटली एग्जेम्पशन लिमिट के अंदर ही आ गया 4800। सो अपन को ज़ीरो टैक्स पे करना है। सो विल टेक अंडर अलाउंसेस चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस ज़ीरो, बिकॉज कुछ भी एडिशनल अमाउंट नहीं आया अपन को अपने क्वेश्चन में, लेकिन हर क्वेश्चन में ऐसा नहीं रहता। नेक्स्ट थिंग इज चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस, सेम एज एजुकेशन अलाउंस। अगर आप किसी भी एम्प्लॉय के बच्चे अगर हॉस्टल में है या बोर्डिंग स्कूल में है और उसका एम्प्लॉयर खर्चा उठा रहे, कितना उठा सकते, प्रोविजन में क्या है, 300 रुपीज़ पर मंथ पर चाइल्ड अप टू 2 चिल्ड्रन, 300 रुपीज़ पर मंथ, एक महीने के 300 रुपीज़, विच मीन्स ईयरली 7200 रुपीज़ फॉर बोथ चिल्ड्रन, इतने तक एग्जेम्प्ट है। लेकिन अपने क्वेश्चन में कितना उठा रहा हूँ, 700 रुपीज़ फॉर 2 चिल्ड्रन, 700 इंटू 2 है 8400, इतना आ रहा, लेकिन एग्जाम कितना है, अगर अपना 2 बच्चों का देखें तो 7200। लेकिन अहमद अब्दुल के 2 बच्चों का कितना खर्चा उठा रहा है एजुकेशनल अलाउंस का, आई मीन हॉस्टल अलाउंस का, 8400 रुपीज़, 8400 माइनस 7200, इतना एग्जाम्प्ट है और इतना उन्होंने दे रहे एक्चुअल में खर्चा। 1200 रुपीज़ क्या हो गया अभी, टैक्सेबल हो गया, क्योंकि सिर्फ इतना ही एग्जाम्प्ट है 7200 रुपीज़, राइट। तो अपन क्या करना, 1200 रुपीज़ को एज अंडर अलाउंसेस हेड चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस 1200 रुपीज़ ले लेना। नेक्स्ट थिंग इज एंटरटेनमेंट अलाउंसेस। एंटरटेनमेंट अलाउंस इज़ नथिंग बट वो पैसे है जो कंपनी ऑफिशियल एंटरटेनमेंट खर्चे के लिए देती है, जैसे क्लाइंट को ट्रीट करना, मीटिंग्स अरेंज करवाना एट्सेट्रा। और प्राइवेट एम्प्लॉय के लिए अलग प्रोविज़न है एंटरटेनमेंट अलाउंस का, और गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए अलग प्रोविज़न है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय को एंटरटेनमेंट अलाउंसेस में भी एग्जेम्पशन मिलता है, लेकिन प्राइवेट एम्प्लॉय को डायरेक्टली 1000 रुपीज़, जैसे यहाँ पर ले लिए, अब्दुल एक प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे थे, दैट इज़ कन्फ्यूजन प्राइवेट लिमिटेड, इसलिए डायरेक्टली 1000 रुपीज़ ले लिए। अगर अब्दुल वही गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते तो कुछ अलग होता, या तो 5000 रुपीज़ पर ईयर, 20% ऑफ हिज बेसिक सैलरी, या फिर एक्चुअल एंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीट, लीस्ट ऑफ द 3 उनको पे करना पड़ता। वी विल सी दिस इन द नेक्स्ट वीडियो और इन द नेक्स्ट प्रॉब्लम, कि अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उनके ऊपर एंटरटेनमेंट अलाउंस कैसा लगता। बट एज ऑफ नाउ अब्दुल एक प्राइवेट एम्प्लॉय है तो उनका पूरा टैक्सेबल है एंटरटेनमेंट अलाउंस, एंड अंडर द अलाउंसेस हेड अपना ले लिए एंटरटेनमेंट अलाउंस 1000 रुपीज़। नेक्स्ट थिंग इन द क्वेश्चन इज क्लब बिल्स 1000 रुपीज़ पर ईयर। पर क्यूजिट्स में आता है क्लब बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, जितने भी क्लब बिल है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, क्रेडिट कार्ड्स है, अगर ऑफिशियल पर्पसेस के लिए दिए जा रहे हैं एम्प्लॉय को और उन्हें ऑफिशियल पर्पसेस के लिए ही यूज़ कर रहे हैं तो उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता। लेकिन उन्होंने अगर पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ कर रहे, क्लब बिल की मेंबरशिप या इलेक्ट्रिसिटी बिल जो पे कर रहे हैं, या फिर क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे पर्सनल पर्पसेस के लिए, तो वो फुल्ली टैक्सेबल है। और यहाँ अब्दुल को अहमद ने ये सारी चीज़ें दी, लेकिन उन्होंने उनके पर्सनल यूज़ के लिए उसको यूज़ करे, इसलिए वो तीनों भी फुल्ली टैक्सेबल है। क्लब बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, क्रेडिट कार्ड, तीनों का प्रोविजन सेम है। अगर ऑफिशियल पर्पसेस के लिए यूज़ कर रहे हैं, नॉट टैक्सेबल। अगर पर्सनल पर्पसेस के लिए यूज़ कर रहे हैं, फुल्ली टैक्सेबल। 1000, 1000, 1000, दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन, वी हैव टेकन इट एज इट इज़ अंडर परक्यूजिट्स। परक्यूजिट्स क्या होते हैं, नथिंग बट बेनिफिट्स जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देते हैं। नेक्स्ट थिंग इज गिफ्ट। गिफ्ट के लिए एक अलग प्रोविजन है। गिफ्ट का प्रोविजन ये है, अगर कंपनी आपको कोई गिफ्ट देती है, वाउचर देती है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट देखते कि कितने तक का गिफ्ट है। अगर वो 5000 रुपीज़ तक का गिफ्ट है, दैट इज़ एक्सेप्ट। लेकिन अगर 5000 रुपीज़ से ज़्यादा अमाउंट का गिफ्ट है, उसकी वर्थ ज़्यादा है, दैट मीन्स इट इज़ टैक्सेबल। 5000 से ऊपर जितना भी अमाउंट है वो टैक्सेबल होता, सिर्फ 5000 तक तो एग्जेम्प्ट ही रहता। दैट डजेंट मीन कि गिफ्ट सिर्फ कैश में देता, उसकी वर्थ भी देखते। फॉर एग्जाम्पल, अगर न्यू ईयर पे अब्दुल को 10,000 रुपीज़ का शॉपिंग वाउचर मिला कंपनी से, उसकी वर्थ देखिए 10,000 रुपीज़, तो फर्स्ट 5000 रुपीज़ क्या होते हैं, एग्जेम्प्ट हो जाते, लेकिन नेक्स्ट 5000 रुपीज़ टैक्सेबल हो जाते। और यही अपने क्वेश्चन में भी ऐसे ही है। एज यू कैन सी हियर, रिसीव फ्रॉम एम्प्लॉयर गिफ्ट 10,000 रुपीज़ वर्थ थी उसकी, अप टू 5000 एग्जेम्प्ट, रिमेनिंग टैक्सेबल, दैट इज़ 5000 रुपीज़।
and under the head perquisites we have taken as gift 5,000 rupees taxable. सो लास्ट थिंग क्या है, प्रॉफिट्स इन ल्यू ऑफ सैलरी. प्रॉफिट्स इन ल्यू ऑफ सैलरी इज़ नथिंग बट अगर प्रॉफिट दे रहे हैं इन प्लेस ऑफ सैलरी, लेकिन अपने क्वेश्चन में ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं दिया है, फिर कोई भी ऐसी एंट्री नहीं मिली जो पहला यहाँ पे ऐड कर सके. सो वी आर मूविंग फॉरवर्ड विद दिस. नाउ ग्रॉस इनकम फ्रॉम सैलरी वी हैव टू टोटल ऑल दीज अमाउंट्स दैट कम्स टू 1,56,300. अब इसमें से अपन को डिडक्शंस करना है विच आर गिवन इन सेक्शन 16. डिडक्शंस अंडर सेक्शन 16. So there are 3 deductions. Standard deduction under section 16 1A, 50,000 or gross income from salary, whichever is less रहता. So obviously 1,56,300 is more than 50,000. So we have to take 50,000, right? Next is entertainment allowance under section 16 2. As I have told, Mr. Abdul is private employee. तो यहाँ पे इनको कोई डिडक्शन नहीं मिलता है. यहाँ पे उन लोगों को डिडक्शन मिलता है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है. यहाँ पे we will take it as nil. नेक्स्ट इज़ प्रोफेशनल टैक्स अंडर सेक्शन 16(3). जो भी प्रोफेशनल टैक्स पे कर रहे हैं वो भी अपन को एज डिडक्शंस मिल जाता है यहाँ पे 2,400 रुपीज़, विच मीन्स 200 रुपीज़ पर मंथ पे कर रहे थे ईयरली, दैट इज़ 2,400 रुपीज़. द टोटल ऑफ दीज टू इज़ 52,400. वी हैव टू डिडक्ट दिस फ्रॉम दिस अमाउंट 1,56,300 माइनस 52,400. इनकम फ्रॉम सैलरी कम्स टू 1,03,900 रुपीज़. So this is the whole problem. Along with the pro forma, I have done it neatly so that you can understand it easily. See, as I told, it is all about provisions. Once you understand the provisions and what are calculations we have to do in the provisions, it is simple. As we have seen in HRA, dearness allowance, CCA, we have seen all this, right? It is similar for all questions, just the amount changes and the calculation part. Once you understand the provisions, it's easy. I hope you all understand the provisions and which thing comes in what head, like salary, allowances, perquisites or deductions. Then it is simple for you all. I hope you all understood this.